Can you see this screen which I share with you? You can show me a thumb like this. See, you can show a thumb like this if we are able to see this. Yes, yes. Shlok, now you just off your video so that you will get the proper network connectivity to listen to me carefully. Just focus on it. And I hope that you all might have purchased the books also. Yes, this is the poem, A String Song. Now, before starting this, I want to just inform some points. That is, you have to listen to me carefully. If you don't understand the last 5 minutes, you can ask me by chatting, okay, through chatting. Don't unmute yourself. Now this is actually activity. All of you open page number 5, lesson number 4, A String Song. This is a song. I'll explain you. First I will read this, okay. This is actually the group of minimum 8 to 10 children, those who are playing this game, okay. Those who are playing this game, 8 to 10 children together, they are playing this game and they are singing this song. The first child, first let me read this, then I will explain you. The first child says, I went to the market. Do you know what I bought? Now you see, this first child here, before starting this poem, I said you that this actually a group of 8 to 10 children and they are playing a game. Okay, this game they are playing, and in that one child is telling that I went to the market. Okay, what he did? He went to the market. Yes. I got a message that my voice is not clear, but rest you just come in the network connectivity so that you will find a proper network connectivity. Okay? Actually, sir, I will explain in English as well as in Hindi also. Yes. अभी देखो हमारा जो फर्स्ट लेसन, ये फोर्थ लेसन हम ये कर रहे हैं. अभी हम लोग ये फोर्थ लेसन स्टार्ट कर रहे हैं. लेसन का नाम है अ स्ट्रिंग सॉन्ग. ये एक पोयम है जो हम आज इसका पेज नंबर 5 सभी लोग ओपन करो और फिर इसके बाद में मैं इसके लाइंस रीड करूंगी. देन इन बोथ द लैंग्वेजेस आई विल एक्सप्लेन यू. दोनों लैंग्वेजेस में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट हियर यू शुड अंडरस्टैंड इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी. फर्स्ट आई inform you everything in English, so better all of you off your videos so that you will get. Who is using this GDM? Who is using this GDM? Please off your video. How many times I should say? So ये जो बच्चे एक गेम खेल रहे हैं वो 8 से 10 बच्चे एक ग्रुप फॉर्म किए हैं और वो ग्रुप में जो है ना उसमें सिर्फ एक बच्चा वो बता रहा है कि आई वेंट टू द मार्केट, यानी मैं मार्केट गया था. आई वेंट टू द मार्केट. डू यू नो, आपको पता है कि मैंने वहां से क्या खरीदा? मैं आज मार्केट गया था और मार्केट में से मैंने क्या खरीदा आपको पता है? सो ऐसा वो बता रहा है. सम रेड शाइनी एप्पल्स, दैट्स व्हाट आई गॉट. वो कह रहा है कि आज मैं मार्केट गया था और आप लोगों को पता है कि मैंने मार्केट में से क्या खरीदा? मैंने रेड, ऐसे रेड रेड शाइनी एप्पल्स खरीदे हैं. ओके,
मैंने रेड रेड, लुक एट इन दिस पिक्चर ऑल्सो, पिक्चर में भी देखो कि रेड रेड शाइनी एप्पल्स, यस ना, यस। जब ये शाइनी कैसे करते हैं आपको पता है? उसको जब जो भी इसको जो सेल आउट करते हैं, जो बेचते हैं, उसको अच्छे से पोंछ के धो के साफ करके रखते हैं। सो क्या होता है, ये रेड कलर के एप्पल्स जो है ना एकदम शाइन करते हैं, मतलब चमकते हैं। अंडरस्टूड? सो here once again I will read this, okay? And here who is telling? That one boy is telling कि I went to the market and what I bought from there? Some red shiny apples I purchased. Okay? This is informing to rest of the students. वो दूसरे स्टूडेंट्स को बता रहा है कि मैं आज मार्केट गया था और वहां से आप लोगों को पता है मैं क्या खरीद के आया? मैं वहां से रेड कलर के अच्छे से शाइनिंग करने वाले एप्पल्स खरीद के आया हूं। ओके, यस। The second child adds something. I went to the market. Do you know what I bought? Some red shiny apples, a big loaf of bread. अब इसमें दूसरा बच्चा बोलता है कि आप लोगों को पता है मैं भी आज मार्केट गया था, मैं भी आज मार्केट गया था, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि मैंने क्या खरीद के आया। मैं तो कुछ शाइनी एप्पल्स खरीदा और मैंने बिग लूफ ऑफ ब्रेड, मतलब एक लंबा सा ब्रेड खरीदा। लूफ यानी एक बंच, एक बिग। इन दिस पिक्चर ऑल्सो यू कैन सी, आप लोग ये पिक्चर में भी देख सकते हो। आया समझ में? ये मैंने एप्पल्स भी खरीदा और मैंने एक ब्रेड भी खरीदा है, ये दोनों बता रहे हैं। पहले बच्चे ने क्या खरीदा मार्केट जाने के बाद में? सम रेड शाइनी एप्पल्स। शिवराज, आपने जो हैंड रेस किया है, मैं लास्ट की मीटिंग में आप लोगों को टाइमिंग दूंगी आपके क्वेश्चंस पूछने के लिए। ओके, लेट मी कंप्लीट दिस स्टैंजा। ओके, तो एक बच्चे ने बोला, जो फर्स्ट बच्चा था, कि उसने बोला कि मैं आज ना मार्केट गया था, मार्केट से मैंने कुछ रेड शाइनी एप्पल्स खरीद के आया। और फिर दूसरा बच्चा बोलता है कि मैं भी आज मार्केट गया था और मैंने आज मार्केट से क्या खरीदा? मैंने तो एप्पल्स तो खरीदे, लेकिन मैंने एक ब्रेड का बंच भी खरीदा है। मैंने एक बिग लूफ यानी एक लंबा वाला जो लूफ रहता है ब्रेड का, वो भी खरीदा है। सो ये वो सेकंड बच्चा बता रहा है कि मैंने आज मार्केट से खरीदा है। दैट्स व्हाट आई गॉट। अब उसके बाद में थर्ड बच्चा क्या बोलता है? द थर्ड चाइल्ड एड्स वन मोर थिंग, मतलब पहले बच्चे ने सिर्फ रेड एप्पल खरीदा, दूसरे बच्चे ने रेड एप्पल भी खरीदा प्लस एक बिग लूफ ऑफ ब्रेड भी खरीदा। अब थर्ड बच्चा वो ऐड हो गया और वो क्या बोल रहा है? द थर्ड चाइल्ड एड्स वन मोर थिंग। फर्स्ट चाइल्ड ओनली परचेज द रेड एप्पल्स, but the second child purchased red apples and one big loaf of bread. But when third child, he just said, even I went to the market. I went to the market. Do you know what I bought? आपको पता है कि मैंने क्या खरीदा? Some red shiny apples and a big loaf of bread and a pack of color pencils. Look at in this picture also. See, this a pack of color pencils. A pack of color pencils also that third child add in the thing. So, how many childs went to the market here? First child, second child and third child.
First child only purchase red shiny apples. Second child purchased red shiny apples and a big loaf of bread. Third child purchased a shiny apples, big loaf of bread and a pack of color pencils. Okay, so these are the things purchased by a third child. Okay, so I just explain you this. Now we will move to a next paragraph. So before moving to the next stanza, I want to ask you if you are having any doubt regarding, as this is our first online lecture, I want to inform you, if you are having any doubt, you can chat me. I will see and give you the answers. Okay, if you are having any problem, better you just ask me, so that next I will move. Students, you can put me a message from the chat box, and if you don't have any doubt, I will continue the lesson. Are you understanding me what I explain you? So you can show the thumb also. Yes, if you are having any doubts, once again I am repeating, you can use the chat box. I will answer you. If you don't have any problem, you can show me the thumb so that I will continue. You can unmute yourself. Okay. So can I continue now the next poem? Yes, madam. Yes, okay. So, no problem. I'll continue. Okay? मैं आप लोगों को एक बार वापस हिंदी में समझा देती हूँ कि जब भी आप लोग मीटिंग ज्वाइन करोगे तो 5 मिनट पहले मीटिंग ज्वाइन करना है। मीटिंग ज्वाइन करते समय आप लोगों को आपका नाम लॉगिन करना है। वो कैसे होगा मैं आपको बताती हूँ। जब आप लोग जूम मीटिंग में जाओगे तो वो मीटिंग आईडी मांगेगा। मीटिंग आईडी हम आपको भेजते हैं, वो डालना है। उसके बाद में आपको आपका नाम लिखना है और उसके बाद में पासवर्ड डालना है। ऐसा करके आप लोग अपने नाम के साथ ये लेक्चर अटेंड करोगे। लेक्चर अटेंड करते से ही आपको अपना वीडियो और ऑडियो दोनों ऑफ रखना है, मतलब उसको ऑन नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर साउंड आएगा तो आप लोगों को मेरा वॉइस क्लियर समझ में नहीं आएगा। अभी भी कई बच्चों ने आज अपने नाम से ये मीटिंग ज्वाइन नहीं किया है, तो आपको प्रॉपरली मेरा साउंड नहीं आएगा। तो मैं वापस से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना वीडियो ऑफ कर दो और माइक भी ऑफ रखो। आप जब मोबाइल से लेक्चर अटेंड करते हो तो आपके मोबाइल की स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में म्यूट है और वीडियो है, तो उसको ऑफ कर दो तो आपका वो ऑफ हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि ये हमारा इंग्लिश का लेसन है, तो आप लोग ट्राई करो, आपको इंग्लिश में ही समझना पड़ेगा। 1 दिन 2 दिन
3 दिन नहीं समझ में आएगा, लेकिन 4th डे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमारा ये जो लेक्चर रहेगा वो 30 मिनट्स के लिए रहेगा, इसीलिए आपको प्रॉपरली टाइम पे ही ज्वाइन करना है, नहीं तो आपका क्लास मिस हो जाएगा। दूसरा चीज, जिसको भी रेंज का प्रॉब्लम है वो आप प्रॉपरली रेंज में आ जाओ। क्यों? क्योंकि मेरा वॉइस अच्छे से बहुत सारे पेरेंट्स को क्लियर आ रहा है, तो जहां पे आप लोगों को नेटवर्क कनेक्टिविटी मिलती है वहां पे ये लेक्चर अटेंड करो। दूसरा, जो बच्चों को नेटवर्क कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है तो वो मुझे मैसेज कर दें, तो हम उनके लिए कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट देखते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, लेक्चर के बीच में आप लोग कोई भी मैसेज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक लेक्चर कंप्लीट नहीं होता है मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं दे सकती हूँ। लास्ट के 5 मिनट्स जो हैं आप लोगों को मैं डाउट के लिए जरूर दूंगी, ताकि आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं कि जो चीज अगर लेसन की आपको नहीं समझ में आई है तो मैं वो वापस से अंडरस्टैंड करवाऊंगी, मतलब वापस से मैं एक्सप्लेन करूंगी। सो वंस अगेन, ये जो पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों को इंग्लिश में बताए थे वो हिंदी में भी बताया। तो आप लोगों को क्या करना है अभी कि जो जो मैंने इंस्ट्रक्शंस बोले हैं वो क्लियरली फॉलो करना है। अब वापस से मैं पूछती हूँ कि जो मैंने पोयम आप लोगों को अभी समझाया वो समझ में आ गया क्या? तो मुझे थंब करके चैट बॉक्स में जाओ। आपकी मोबाइल पे नीचे के स्क्रीन में चैट बॉक्स, पार्टिसिपेंट्स सब आता है, वहां पे जाके मुझे चैट बॉक्स में जाके मैसेज कर सकते हो कि यस मिस हमको समझ में आया। जैसे कि अभी एक पेरेंट ने डाला है, अथर्व ने, उन्होंने थंब दिखाया है कि उनको समझ में आया है। तो ऐसे आप लोग बता सकते हो। आप अगर ऐसे बता दोगे तो मैं नेक्स्ट फिर आगे ये पोयम को कंटिन्यू कर सकती हूँ। यस, ओके। सो और टेंशन लेने का बात नहीं है, क्योंकि आज आप लोगों का फर्स्ट डे है ये ऑनलाइन, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा। कल से आप लोगों को ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा। जहां पे आप लोगों की प्रॉपर नेटवर्क कनेक्टिविटी मिलती है वहां से ज्वाइन हो जाओ। मैं इंग्लिश में भी आपको एक्सप्लेन करूंगी 2-3 दिन और हिंदी में भी, और उसके बाद मैं हिंदी में बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बिकॉज आपको इंग्लिश मीडियम में हो, मैं इंग्लिश का लेक्चर ले रही हूँ, इंग्लिश सब्जेक्ट है तो हमें इंग्लिश में ही समझना है। ऐसे आप लोगों की इंग्लिश परफेक्ट हो जाएगी। सिर्फ इतना है कि आपको केयरफुली लिसन करना है। मुझे चैट बॉक्स ओपन है, जिस किसी को भी जो मैंने अभी लेसन समझाया, जो मैंने पोयम समझाया, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज करो, मैं वापस से एक्सप्लेन करूंगी। आप लोग अभी घर पे बैठे हो, वो बुक्स ओपन करो और ये पोयम जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया है ये समझना है, ये आपको वापस से रीड करना है। पेज नंबर 5, लेसन नंबर 4, अ स्ट्रिंग सॉन्ग। ओके, मैम, यस, मुझे लास्ट पैराग्राफ नहीं समझ में आया। हाँ, ओके, आई विल एक्सप्लेन यू। यस, लाइक दिस वे। अभी हमारे पास में और 5 मिनट्स बाकी है। आप लोगों को भी डाउट है? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आपका आवाज क्लियर नहीं आ रही है। यस, ये जो एक्टिविटी है ये 8 से 10 बच्चों का ग्रुप ने मिला के ये एक्टिविटी किया है। ओके, अब इसमें क्या हुआ कि जो ये एक्टिविटी कर रहे थे तो इसमें से फर्स्ट बच्चा, उसने क्या बोला कि मैं मार्केट गया, मैं मार्केट से क्या खरीद के लेके आया, मैंने रेड शाइनी एप्पल्स खरीदे। ठीक है,
ऐसा फर्स्ट बच्चा बोलता है। फिर सेकंड बच्चा बोलता है कि यस, आज मैं भी मार्केट गया था और मैंने मार्केट से क्या खरीदा, मैंने एप्पल्स भी खरीदे और उसके साथ साथ मैंने एक बहुत बड़ा ब्रेड भी खरीदा। ठीक है, मैंने एप्पल्स के साथ में ब्रेड भी खरीदा। आप लोग पिक्चर्स भी देख सकते हो, मैंने पेज भी स्क्रीन शेयर किया है। ओके, अब थर्ड बच्चा बोलता है, जो थर्ड बच्चा बोलता है यस, मैं भी गया था मार्केट में, लेकिन मैंने एप्पल्स भी खरीदा, ब्रेड भी खरीदा, लेकिन उसके साथ मैंने और भी कुछ खरीदा है। तो उसने और क्या खरीदा, उसने एक पैकेट यानी एक पूरा पैक, जो कलर पेंसिल्स रहती ना हम लोग जब ड्राइंग में यूज करते, सो मैंने एक कलर पेंसिल्स का पैकेट भी खरीदा। ये देखो बेटा, आपको बुक की इसमें पेज में यहाँ पे भी स्क्रीन पे शेयर किया ना, ये भी दिख रहा है। डोंट यूज दिस मार्किंग्स, डोंट यूज दिस मार्किंग्स, आई सेड यू। उससे क्या हो जाता है, स्क्रीन शेयरिंग खत्म हो जाता है बेटा। सो ये थर्ड बच्चा बोलता है कि मैं भी आज मार्केट गया था, मैंने कुछ सम रेड शाइनी एप्पल्स खरीदे और मैंने एक बहुत ही लंबा वाला ब्रेड के लूप भी खरीदा, लंबा बड़ा वाला ब्रेड, और एक मैंने पैकेट कलर पेंसिल्स का भी खरीदा। ये मैंने आज तीनों चीज मार्केट से खरीदा है। तो ये मैंने पोयम आप लोगों को बताया और मुझे है, and I know that you understood this poem. Again tomorrow I will inform you here rest of the pictures also what in it. Okay, so tomorrow once again I will show you these pictures and we will continue. Here some more things are there that I will inform you. Okay, now you see here, so many things are here used. This one, this is a string of white flowers. What is meant by string, you know? First of all, string का मतलब पता है, जो एक ऐसा धागे से पूरा बंधा रहता है, एक गुच्छा जिसको बोलते हैं ना, धागे से पूरा टाइप, जैसे हमारे फ्लावर्स बंधे रहते। देखो, स्ट्रिंग ऑफ वाइट फ्लावर्स, ये पिक्चर में दिखा रहे हैं वाइट फ्लावर्स, ये पूरे एक बना वाला है, जैसे इसको बोलते हैं गजरा। और ये बंच ऑफ बनानास, बंच क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक बंच रहता है, पूरे एक दूसरे से लगे रहते हैं, तो इसको बोलते हैं बंच ऑफ बनानास। मतलब 12 बनानास एक बंच में रहते हैं, कभी कम भी रहते तो टूटते भी हैं, ठीक है ना। और ये कुछ रेड रेड शाइनी एप्पल्स। और ये अ बिग जार ऑफ हनी, हनी मतलब शहद, जो हमें हनी बीज से मिलती है। शहद है ना, हम ब्रेड पे भी शहद लगा के खाते हैं एंड इट इज वेरी टेस्टी। सो दिस इज अ हनी, द जार, अ बिग jar of honey, and this is the packet of, one packet of pencils. This is a loaf of bread, and this is a sack of gram flour. मतलब ग्राम फ्लोर, फ्लोर का मतलब होता है आटा, जिसकी हम रोटियां बनाते हैं। सैक मीन्स ये जो बैग है ना, इसको सैक बोलते हैं। बच्चों, आप लोग ये सैक बैग से जंपिंग भी करते हो ना, इसके अंदर जाके फिर आप लोग जंपिंग भी करते रहते हो, सैक जंपिंग गेम भी होता है। सो दिस इज अ सैक ऑफ फ्लोर, फ्लोर मीन्स आटा, आटे का पूरा बैग रहता है ना, उसको बोलते हैं। और ये है अ पैक ऑफ
liquid soap. Now you see, in this coronavirus, what do? We just wash our hands with a liquid soap. Every frequently of 20 minutes, we have to wash our hands by using a liquid soap. Here some are the juicy mangoes. Yes, juicy mangoes. And this is a pair of bangles. Pair means, you know what is the meaning of pair? Pair means two, एक जोड़ी. Two pieces, एक जोड़ी. एक जोड़ी means left और right का जो बैंगल हम पहनते हैं उसको बोलते हैं वन पेयर. बट वो कितना क्वांटिटी रहता है? 2 pieces. ओके, सो तभी ये एक पेयर बनता है. सो हियर I just explain you about the images which are shown in this picture, and I hope that you all of you understood. Once again, I'll ask you all of you to read this lesson a string song. Okay? And if you don't have the books, you just please purchase the books from market. Thank you all of you for listening me. Have a nice day. Bye. Bye, ma'am. Bye. Bye, ma'am. Bye all of you. Take care. Read this. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye. You have to read this poem. Understood all of you? Bye, Time. ma'am. Bye.